आदाब नाजरीन कोशर खबरनामा है बह गौहर कुछ तुंदिस खदमतस मज हाजिर तो पेश खबरन हिज तफसील। इस्लामी ताउन तंजीम तरफ जम्मू कशीर मुतलिक दिन आमत बयान मजम्मत करान वोन भारतन जे पाकिस्तान तरफ जम्मू कशीर मुतलिक गलत बयानी कर अक़वाम मुत्तहिदास मज भारत के मुस्तकिल रुकन तरफा वन जे पाकिस्तान तरफ OIC का गलत इस्तेमाल कर जन जम्मू कशीर भारत अंदरूनी मामल तह पावो चेत OIC रुकन तरफ अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशनस मज बयान जारी कर आमुत जे कशीर मंच भारत तरफ इंसानी हुकूकन हिंज पामाली कर। Madam President, we exercise our right of reply to the statements made by Pakistan and the OIC under the agenda item 2. The COVID-19 pandemic has changed the way we are conducting this session. However, Pakistan's deliberate misuse of this august forum for its malicious propaganda against India, aimed at diverting the attention of the Council from its own serious violations of human rights, has remained a constant. Madam President, the members of this Council are well aware that Pakistan has provided pensions to dreaded and listed terrorists out of state funds and has the dubious distinction of hosting the largest number of terrorists proscribed by the United Nations. Pakistani leaders have admitted the fact that it has become a factory for producing terrorists. Pakistan has ignored that terrorism is the worst form of human rights abuse and the supporters of terrorism are the worst abusers of human rights. The Council should ask Pakistan why the size of its minority communities such as Christians, Hindus and Sikhs has drastically shrunk since independence, and why they and other communities such as Ahmadiyas, Shias, Pashtuns, Sinds and Baloch have been subjected to draconian blasphemy laws, systemic persecution, blatant abuses and forced conversions. Holy and ancient sites of religious minorities in Pakistan have been attacked and vandalized daily. Enforced disappearances, extrajudicial killings and arbitrary detentions of those who try to speak against the establishment are rampant in Pakistan and have been carried out by the state security agencies with impunity. Recently, Ahmed Omar Saeed Sheikh, the key suspect in the murder of journalist Daniel Pearl, was allowed to go scot-free. Disappearances and killings of Baloch human rights defenders show that human rights defenders are not safe even after they leave Pakistan. Idris Khatak, a human rights defender who was picked up in November 2019, continues to be in secret detention. Pakistan, a country in dire economic situation, will be well advised to stop wasting time of the Council and its mechanisms, stop state-sponsored cross-border terrorism, and end institutionalized violation of human rights of its minority and other communities. जमिस मज आवाज कांग्रेस कारकुनों तरफ कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आज़ाद खिलाफ एहतजाज करने या दौरान एहतजाजस में शामिल कारकुनों गुलाम नबी आज़ाद खिलाफ सख्त नारबाजी करान अत मौके पे एहतजाजी कांग्रेस कारकुनों से कांग्रेस सीनियर लीडर हुंद जम्मू कश्मीर हालिया दौर युद्ध पार्टी मजबूत बनान कर आमुत ताहम तकरीब मज सिलेक्टेड लुक मदु आमत कर जन गुलाम नबी आज़ाद सद तरफ वज़ीर अज़मत तारीफ कर यम कथ हज इशार कर तम BJP कन इशारन पे काम कर। जम्मू कश्मीर का उनको मुख्यमंत्री भी बनाया गया और अभी लीडर ऑफ जब कांग्रेस पार्टी क्राइसिस में थी तब भी उनको भरोसा देके उनको लीडर ऑफ अपोजिशन जो है बनाया और वो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का स्टेटस एंजॉय कर रहे थे। जैसे ही उनका टर्म पूरा हुआ और इस वक्त जब कांग्रेस पार्टी क्राइसिस में है, इस वक्त उनको कांग्रेस पार्टी के साथ अपनी नेता सोनिया गांधी के साथ खड़ा होना चाहिए था कि कांग्रेस पार्टी को वापस मजबूत किया जाए, मगर उन्होंने ट्यूनिंग ही बदल दी एकदम। और फिर पिछले दिनों किस तरीके से उन्होंने जम्मू में आए और एक तंजीम जिसके खुद हेड है वो कार्यक्रम किया, कुछ सिलेक्टेड कांग्रेस के लोगों को बुलाया और बाकी कांग्रेस को इग्नोर किया और फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की तारीफ करके चले गए जम्मू कश्मीर में, जिसके खिलाफ हम कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़क पे लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारा स्टेटहुड हमारे प्रधानमंत्री ने छीन लिया, हमारी लैंड्स की प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, हमारी जॉब्स की प्रोटेक्शन के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारा कल्चर जम्मू को आइडेंटिटी थ्रेट में उसके लिए हम लड़ रहे हैं और आप उन्हीं की तारीफ करके जम्मू कश्मीर में जा रहे हो। इसका मतलब आप कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हो, कार्यकर्ताओं के मोरल को कमज़ोर करने की आप कोशिश कर रहे हो। इसलिए हमने स्ट्रांग रिएक्शन दिया है और हम मांग करते हैं अपनी नेता सोनिया गांधी से कि हम कांग्रेस का कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, हम अपना खून पसीना बहाने के लिए तैयार हैं। हम NSUI यूथ कांग्रेस के संगठन में सब लोग
जो हैं, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। हम स्ट्रांग मांग करते हैं कि इसके खिलाफ एक्शन किया जाए। देखिए इन्हीं लोगों की वजह से, क्योंकि देखिए 10 साल यूपीए में रहे, ये इन कार्यकर्ता जो यहाँ 200 300 500 जो कार्यकर्ता यहाँ खड़े थे पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके कारण नहीं, ये लोग 10 साल यूपीए में सरकार में रहे। तो सवाल इनसे पूछना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी को क्यों इन्होंने कुछ गलतियाँ की होंगी तो ये हालत हुई। आज उन गलतियों से को सुधारने की ज़रूरत थी। इनको कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े होकर, जिन 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है वहाँ पे इनको जाके, राहुल गांधी जहाँ केरला तमिलनाडु में आज दिन रात सड़क पे जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, उनके साथ खड़ा होना चाहिए था। सोनिया के जी के साथ खड़ा होना चाहिए था। उसके बजाय ये आज जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो इससे कांग्रेस पार्टी मजबूत नहीं होगी। तो डेमोक्रेसी, आगे चुनाव होगा, जिसको अध्यक्ष के पद खड़ा होना वो तो डेमोक्रेसी है, उसमें जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी हंद सदर गुलाम अहमद मीरन वोन गुलाम नबी आज़ाद सद तरफ खिताबस दौरान जम्मू कश्मीर हंदन लुकन हंद जज्बात मजरू करने पत कारकुनन ताम लुकन मज नाराजगी तो मायूसी पद सपजम तो योदवे लुकन के उम्मीद जुड़ित ताहम सह नाउमीदी मज तब्दील सपजम तोहफाओ चेतस जी मीर नई दिल्ली रवाना सपदमित यथ दौरान तमो पार्टी हंद आला लीडरन सत मुलाकात कोर। दूसरा तरीका भी कार्यकर्ता इस्तेमाल करता है, तो अभी तक हम उसको अवामी रिएक्शन मानते हैं। अभी असेसमेंट कर रहे हैं कि लोग इसको किस तरह से ले रहे हैं, तो आने वाले 1-2 दिन में पता चल ही जाएगा किस डायरेक्शन में ये जा रहा है। ये तो अब मेरे ख्याल से उनको ये सवाल जानना चाहिए था कि वो तो आज़ाद साहब है भी और वो अपने आप को कहते भी हैं कि मैं ऑर्गेनाइजेशन का मास्टर हूँ। तो ऐसे में जब वो खुद कोई इवेंट करते हैं तो उसमें क्या उनके जहन में ये नहीं रहा कि यहाँ ऑलरेडी एक प्रदेश कांग्रेस कमेटी का यूनिट बना हुआ है, या जो प्लेटफार्म वहाँ लगा रखा था जब भाषण सारे कांग्रेस या कांग्रेस रिलेटेड थे, तो ऐसे में क्या सोनिया जी का, राहुल जी का या प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं होता चाहिए था वहाँ पर? वो सवाल का जवाब मेरे ख्याल से किसी टाइम आज़ाद साहब को देना चाहिए और उनको वो क्लियर करना चाहिए उनको, क्योंकि बहुत सीनियर लीडर है। जो आवाम में कन्फ्यूजन हो गया, मैंने कहा 27 तारीख के स्पीच और 28 तारीख की रिएक्शन को लेकर पूरा जम्मू कश्मीर का आवाम कंफ्यूज कर दिया उनने। तो ऐसे में मैं खुद भी चाहूँगा कि आज़ाद साहब पहले इसकी वजाहत करें, उनने किस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें की, तो पहले उनको आना चाहिए आवाम के सामने। हमारा एक रूटीन ऑलरेडी शेड्यूल मीटिंग थी, क्योंकि हमारे स्टेट में कोई 45 दिन का एक प्रोटेस्ट प्रोग्राम चल रहा है, महंगाई को लेकर, टैक्सेस को लेकर, सारी चीज़ें जो मुसीबतें हैं लोगों की उसको लेकर। और एक और प्रोग्राम हम तैयार कर रहे थे, मेरी जो इंचार्ज रजनी पाटिल जी है, कल हमारा डिटेल डिस्कशन उस पर हुआ। कोई आने वाले दिनों में 20 के 20 जिलों में हम कार्यकर्ताओं के साथ इंटरेक्टिव सेशन, सम्मेलन, कन्वेंशन का एक प्रोग्राम हाथ में ले रहे हैं। वो तकरीबन हमने आपस में फाइनल किया है। हम अपने रूटीन प्रोग्रामों को डिस्कस करने के लिए आए थे। PDP सदर महबूब मुफ्ती वोनमुत भारत तो चीनस दरमियान योदवे इकतबात सत हालातन मज बेहतरी वुचन यवन मरकजी सरकारस पज पाकिस्तान सत सियासी तौर कतबात शुरू करें युथ जम्मू कशीर हिंदन हालातन मज बेहतरी युथ अमन बरकरार सपद। दुनिया में जो हालात बदल रहे हैं और उसका असर जम्मू कश्मीर पर पड़ रहा है, और जिस तरह चीन के साथ भी हालात संभल रहे हैं, इसी तरह पाकिस्तान के साथ सीज़फायर की बात हुई और मुझे उम्मीद है आगे चल के ये बात जो है पॉलिटिकल लेवल पर करना चाहिए। अभी मेरे ख्याल में साहब का जो मीटिंग है शायद वो पाकिस्तान में हो जाए, और हो सकता है हमारे वज़ीर आज़म वहाँ चले जाए, तो मुझे लगता है वो अच्छा मौका होगा जम्मू कश्मीर। जिला इंतजामिया राजौरी तरफ योदवे सरकारी इमारतन पे गैर कानूनी तौर कब्जा करने मुहिम केंदो ब्रो शुरुआई कर तत सबक MLA मंजाकोट सद तरफ सरकारी क्वार्टर नश बेदखल आमुत कर। जिला तरक्याती कमिश्नर राजौरी तरफ आव वन मुहिम दौरान आय आज ताम 18 सरकारी इमारतों पे कब्जा हटाने तो इन वाले दोहन मज रोज मुहिम जारी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं या पंचायत घर हैं, उनकी ये शिकायत जो है वक्तन फ़वक्तन मुझे आई कि लोगों ने अनऑथराइज तरीके से उनको ऑक्यूपाई किया है और गवर्नमेंट की फंक्शनिंग जो है वो सफ़र कर रही है। स्कूल के बच्चे बाहर पढ़ते हैं लेकिन स्कूल पर लोगों ने कब्ज़ा किया है।
आंगनवाड़ी के बच्चे जो हैं वो बाहर लॉन में पढ़ते हैं और आंगनवाड़ी सेंटर पे कब्ज़ा किया है। इसी तरीके से एक दो जगह आपके ये हेल्थ सेंटर्स थे, जो ठेकेदार ने जिसने कंस्ट्रक्ट किया उसने अपना ही कब्ज़ा उस पर जमाया था। तो हमने जब से यहाँ चार्ज संभाला है, आज 40 दिन हो गए, इसके अंदर हमने 17-18 बिल्डिंग्स जो हैं वो खाली करवाई हैं और रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स को हैंड ओवर कर दी हैं। हमारा यहाँ रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स जो एडम ब्लॉक है, इसके अंदर भी कुछ इनपुट्स आए थे, जिसमें अभी तक असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू ने मेहनत करके 4 रेजिडेंशियल क्वार्टर्स अभी तक खाली किए और अपनी पोजीशन में लिए हैं। ये जो बोनाफाइड लोग हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, ये उनको दिए जाएंगे ताकि गवर्नमेंट की वर्किंग जो है वो एफिशिएंसी जो है वो बढ़े। मुलाजम क्वार्टर्स के ऊपर इसलिए दिया जाता है ताकि वो टाइम पे दफ्तर आ सके और कभी लेट भी जाए तो अपने रेजिडेंस पे आसानी से पहुंच पाए। इसी तरीके से एक और क्वार्टर था जो कल इरिगेशन और फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट का था, वो भी 14-15 साल के बाद खाली हुआ है। हमारे चेयरमैन डीडीसी और वीसी साहब जो हैं डीडीसी के, अभी अनटाइटल्ड हैं। गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है कि इनको भी ऑफिस और रेजिडेंसेस देने हैं। तो जो भी काम हमने किया है नेचुरली ये इसमें मदद करेगा कि इनको भी आसानी से हम दे पाएंगे। आल जे कंटिजेंट पेड कुक्स एंड लैंड ओनर्स यूनियन तरफ आवाज हंदवरिस मज एहतजाज करने या दौरान एहतजाजी लुक मुतलका महकमस खिलाफ नारबाजी कराना तो मौके पे वन एहतजाजी लुको योदवत मुतलका महकमस सोस पत्यो कहिया वयो पे कम करान ताहम तिहद मसला आस्ताम हल कर तमो कर आला हुकामन अपील जे मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर सलाह गन तिहद जायज मुतालबा हल यन कर युथ न तिमन दोबारा एहतजाज पे कर। हम स्कूलों में, प्राइमरी स्कूलों में, मिडिल स्कूलों में, हाई स्कूलों में बसित स्वीपर, नाइट चौकीदार, वाटरमैन, कुक काम कर रहे हैं, मीगर वेजेस पर काम कर रहे हैं। हमारे हक में, हमारे लिए गवर्नमेंट ने एक एसआरओ बनाया था 2008 में, एसआरओ 308, जिसमें लिखा गया था कि 50% कोटा एज पर क्लास 4 तो कंटीजेंट पे को दिया जाएगा, बाकी जो बचेंगे उनको मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से तनख्वाह दिया जाएगा। लेकिन बदकिस्मती की आलम यह है कि आज तक हमें 2 बार डीपीसी हुई है। 2015 से आज तक 2021 तक हमारे से फाइलें लिए गए हैं, टेंटेटिव लिस्ट निकाला है, सीनियरिटी निकाली गई है, लेकिन डीपीसी नहीं हो रही है। नंबर 2, जो हमारा बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा मसला है कंटीजेंट पेड़ों का, मिनिमम वेज एक्ट का। 2017 से हम ओई से ले रहे थे 500 से लेकर 1000 रुपये हम तनख्वाह ले रहे थे। गवर्नर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन ने हमें बताया कि आपका हम हेड चेंज करेंगे, आपको हम मिनिमम वेज एक्ट के हिसाब से तनख्वाह दे देंगे। लेकिन आज 3 साल से हम सफ़र कर रहे हैं, इसलिए हम आपके माध्यम से गवर्नर इंतजामिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि फिल 4 कंटीजेंट पेड के हक में मिनिमम वेज एक्ट लागू होनी चाहिए और जो हमारी पेंडिंग डीपीसी है वो भी वागुजार होनी चाहिए। पतलीपुरा बाला छतबल श्रीनगर के लोगों तरफ एहतजाज कर शिकायत बावान वोनमुत इलाकस मज कम राशन गाठस पे तिमन राशन न सिर्फ द्रोगमुल दिन बल्कि 5 किलो बजाय 3.5 किलो तोमुल फराम कर तो योदवे अमे हवाल शिकायत आई कर ताहम कह कदम तुलन तमो कर आला हुकामन अपील जे तिमन गछ इंसाफ युन फराम कर। यह छतबल पतलीपुरा बाला गाठ नसन मुनिश करान दिवान 3.5 किलो तोमुल ये ओतर 3.5 किलो दी मोन नमिस क्या चंद रोज बकायात मोन नमिस तमिस क्या तो कर तमिस गाठ दोपस गाठ कर बंद योतान सोन फैसल कर तोमुलस 3 किलो मगर आर्डर हवा कहें सिर्फ वन डायरेक्टर क्या कर डी सी डिवीजन कमिश्नर छुना ये ओट रेतस दुतुक ओट कहीं पतमिस रेतस दुतुक ओट मगर 15 रुपये अगर ओट सह दुतुक 20 रुपये बे कर ये रेत दी यह 3.5 किलो बाकी नी कहें बे दपान यमिस नश गो तो तमिस गो रात सारी सुपरवाइजर अस मोन नी कहें रात खोलो गाठ ये पत कर तमो सुपरवाइजर माफी मंज तमो करो कोशिश दो तुम तोमुल यम तो दिख पे रात बकाया चंद क्या तिम दिख 4 किलो सह जबरदस्त बे वोन हम कम क्या सस्ता चंद तिम दिख 24 किलो दिख तिम
यथ 5 किलो तुम हतो आर्डर कत आर्डर माना कि कसू गन ट्रांसपोर्टरन तो जम्मू कश्मीर इंतजामिया तरफ हालिया कदबात पत युदवई ट्रांसपोर्टरों तरफ वन आव जे किरायन मज 19% इजाफा करने तत आम लुको तरफ शिकायत करान वन आमुत जे गाड़ी वालों तरफ इजाफी किराय वसूल करने लुकन हुंद वन इंतजामिया तरफ युदवईन कह रेट वन मुकर्रर आई करने ताहम गाड़ी वालों तरफ मनमानी करित मुसाफिरन निश इजाफी किराय वसूल करने लुको इंतजामिया मांग कर्म किराए हवाल गि सही रेट मुकर्रर इन करने युथ मुसाफिरन का मुश्किलात व्यथरुन पे। रिसेंटली जो है जब डीजल का प्राइस जो है हाइक हुआ और उसमें जाके अगर देखा जाए फिर जाके कहा गया कि इन की जो है रेट में प्राइस में 19% बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके हवाले से कोई ऑफिशियल ऑर्डर अभी तक नहीं आया है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर देखा जाए ट्रांसपोर्ट का जो तबका है, अगर फॉर एग्जांपल दरगाह से लेके लाल चौक तक आ जाते हैं तो वो खुद ही अपनी मनमानी से बस फेयर ले लेते हैं। हालांकि ये प्रॉपरली एस्टिमेट करके नहीं कि एज पर अगर 19% बढ़ाया जाए तो वो कितना बन जाता है, उसके लिए हमें कितना पे करना पड़ता है, वो डायरेक्टली खुद जितना उनका मन करता है उतना लेते। तो उस चीज के लिए चाहिए कि अगर 19% बढ़ाने की बात हुई है उस चीज के लिए एक ऑफिशियल ऑर्डर निकलना चाहिए कि एज पर एस्टिमेट के मुताबिक कि कितना, अगर फॉर एग्जांपल दरगाह से मुझे लाल चौक आना है, इससे पहले बस फेयर क्या था तो अब मुझे क्या पे करना है। इस चीज के लिए ऑफिशियली कोई ऑर्डर या नोट्स निकलनी चाहिए जिसकी वजह से लोगों को ज्यादा मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अभी अगर देखा जाए ट्रांसपोर्ट वाले खुद ही अपनी मनमानी से जो है बस फेयर ले लेते हैं। जब भी हम गाड़ी में चढ़ते हैं तो यहाँ पे मनमानी होती है रेट को लेकर, तो किराए को लेकर यहाँ पे मनमानी होती है। तो हम जैसे ही उनको बताते हैं कि कोई ऑर्डर नहीं है आपके पास तो आप कैसे लेते हो, तो वहाँ से मनमानी होती है। अगर मैं गाड़ी में चढ़ता हूँ, मैं आउटस्कर्ट श्रीनगर से जब मेन सिटी में आता हूँ तो मैं ऑलमोस्ट 10 रुपये देता था, आज तो मुझे 10 से ज़्यादा 15 रुपये पे करने पड़ते। तो हालांकि गवर्नमेंट ने कोई ऑर्डर नहीं दिया तो इससे साफ जाहिर है कि आम लोग जो है, आम जनता जो है उन पे डायरेक्टली असर पड़ता है। तो हम आला हुकाम से यही गुजारिश करते हैं कि अगर आपने जो 19% हाइक किया तो अगर ऑर्डर नहीं है तो ये कैसे लेते हैं, तो इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि यहाँ का जो आम नागरिक है उस पर कोई असर ना पड़ जाए। क्योंकि हम ऑलरेडी इस पिछले 2 साल से पिसे हुए हैं, तो अब ये नई मुसीबत हमारे सरों पे है। तो मैं आला हुकाम से यही गुजारिश करना चाहता हूँ इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई की। डाक बंगलू खनवाल अनंतनागस मं सपुद आज PDP वर्करन हुंद कन्वेंशन मुनक्कद यथ मं पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती अब्दुर्रहमान वीरे तो दोयम के लीडर ते मौजूद स। अत मौके पे वो महबूबा मुफ्ती जम्मू कश्मीर हुंद तशख्खुस बहाल करनस ताम रोज पार्टी तरफ जदोजहद जारी। तिमो वोन मजीद बंदूक तो तशद्दुद छुन कुनि ते मसलुक हल बल्कि छु पुरअमन तरीकस मं जदोजहद जारी थाउन। बंदूक किसी मसले का हल नहीं है। बस बार बार वन दिल मज द्राय जमींदार बोल बंदूक सोरे दुनिया की वकालत कर मगर सही वकालत क्या कर करान दहशत गर्दी करान तम से क्या बंदूक से सोन लक शुरा हुई बचे अथर मुश्ताक बेलव राजपुर मैं बस वो दही पास को
बगेडार गुत्रोत्राल के लोको तरफा इलाकस मज कदल तमीर करने मंग करान मन जे मकामी नालस पे योदव लुकन हिंद मुश्किलात दूर करने बापत कदल बनाने जरूरत तो अमे हवाले कह फिर आला हुकामन ते वन तहमावन आज ताम कदल तमीर करनस पे कह पेश रफ्त कर लुकन हुंद वन जे नालस मज कदल तमीर करने वक्त हम जरूरत तो नालस मज आबुक बहाव ज्यादा आसनस दौरान तिमन मुश्किलात व्यातरने पेवन तमो वो तमो कर जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामिस अपील जे लुकन हिंद मुश्किलात दूर करने बापत गए नालस पे कदल युन तमीर करने। सर हमारा मसला ये है कि हमारा जो ये नाला है इस नाले में हमें अगर गाड़ी का पुल नहीं लेकिन कम से कम फुट ब्रिज चाहिए था जिससे हम कभी बीमार हो या कभी डिलीवरी हो किसी की तो उसको हम ले जा सकें। तो उसके बाद के सर मेन मसला ये है कि कल को जब स्टोर पे राशन हमारा है वो सर इस गांव में गुत्रों में तो कल को जब मर्द बेचारे मजदूर हैं क्योंकि मुलाजिम तो सारे होते नहीं इन औरतों को जो चावल लाने पड़ते हैं आप खुद बताइए सर हम कैसे वो लेके उन चावलों को क्योंकि वो कुछ चावल पानी में चले जाते हैं पैसे दे के। सर उसके अलावा अगर हम बात करें जो हमारा ये स्कूल है इसमें दूर दराज से जो मास्टर हैं वो आते हैं कल को तो ये भी बंद हो जाते हैं जब पानी बहुत ज़्यादा होता है तो ये बेचारे भी बंद हो जाते हैं। इनको कभी नारस्तान से जाके वापस जाना पड़ता है कभी सतूरा से जो कि सोजन रोड पे पुल है सर वो पुल में है तो कभी इन बेचारों को इन पहाड़ियों क्रॉस करके वहाँ से जाना पड़ता है। सर हमारी अपील यही है अगर हमें गाड़ी का पुल नहीं लेकिन कम से कम फुट ब्रिज चाहिए था जिससे हम इस नाले को पार करके दूसरे जो बाजारों से रब्ता कर सकें जाके अपने बीमारों को या इन बच्चों को स्कूल भेज सकें। नाम हमजा गुजर है, मैं गुजरू बंगीडार का बाशिंदा हूँ। सर हमारी अपील ये है कि आज से पहले लगभग पुरानी मांग है ये 100 साल भी हो गया है तो लेकिन हमने इस पुल की मांग की थी आज तक किसी गवर्नमेंट ने सर हमको नहीं दी है ये आज तक भी नहीं दी है। कई बोलते हैं आज देंगे कल देंगे हो गया पास अभी पास नहीं हुआ। फिर पर साल में इधर सैलाब आया सैलाब के बारे में इधर हमारे बच्चे पार बंद हो गए गुतरू में और मास्टर साहिबान इधर परेशान हो गए तो फिर एक मास्टर साहिबान ने हमारे इस पुल की बात की थी इससे एसडीएम साहब के साथ। एसडीएम साहब ने बोला था हम खुद भी इसको पुल देंगे और पुल तैयार हो गया आज लाएंगे काम कल लाएंगे। कल बीडीओ साहब आया इधर बीडीओ साहब ने बोला कि यहाँ पुल नहीं लगे। अब आपकी अपील क्या है? सर हमारी अपील यही है कि हमें एक पुल फुट ब्रिज अगर दे दें या ट्रैक्टर पास ही दे दें कुछ न कुछ हमको दे दें या हमको यहाँ से उठा ही दें। स्वच्छ भारत मिशन तहत योदव साफ सफाई हिंद बड़ बड़ दाव कर तथ शुमाली कशीर हिंदिस हंदवर इलाकस मज तलीमी इदारन आस पास ढेर जमा आस्त शिकायत बावान इलाक के लोगों वोनमुत जे बॉयज तो गर्ल्स हायर सेकेंडरी आस पास ढेर जमा आसन सूच न सिर्फ तलब इलमन मुश्किलात तुलन पेवन बल्कि वत पकन वालन ते सठा मुश्किलात व्यतरन पेवन तो योदव इंतजामी नोटिस मज तव तहम कह कदम तुलन आमुत। यपर वोन म्यूनसिपल कमेटी हंदवारा के हुकामो इन वलिस वक्तस मज साफ सफाई अमल मज युथ लुकन हिंद मुश्किलात दूर गछन। जहाँ पर 2 हायर सेकेंडरीज बॉयज़ हायर सेकेंडरी और गर्ल्स हायर सेकेंडरी इनके बीच में ये कूड़ा करकट ये गंदगी और आप खुद देख रहे हैं कितने हैवान यहाँ पे हैं कितने कुत्ते यहाँ पे हैं गंदगी कितनी भी है और लोगों का अबूर मरूर यहाँ से है। यहाँ के हंदवारा की एक बस्ती यहाँ पे है लोग आते जाते रहे हैं बच्चे यहाँ पे आते और आप देखिए कि जहाँ गवर्नमेंट के इतने बड़े बड़े दावे होते हैं हम डेवलपमेंट के लिए इतना कर रहे हैं जहाँ तरक्की इतनी हो रही है पुल बन रहे हैं अस्पताल बन रहे हैं सड़कें बन रही हैं लोगों के ऐश आराम के लिए सामान तैयार किया जा रहा है लेकिन अगर लोगों की सेहत का ख्याल न रखा जाए अगर लोगों के आने जाने का ख्याल रखा जाए तो मुझे बताएं वो तरक्की किस काम की। तो सबसे पहले अगर गवर्नमेंट को चाहिए इस वक्त कि हंदवारा कस्बे के जो ये गंदगी का जो हाल है ये डंपिंग जो एरिया बनाया है इसको यहाँ से उठाएं और किसी ऐसी जगह लें जहाँ लोगों के लिए मुश्किलात पैदा न हो। मैं आपकी चैनल की वसात से गवर्नमेंट से अपील करता हूँ यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ कि यहाँ के लोगों को बड़ी मुश्किलात हैं यहाँ के बच्चों को चाहे वो बॉयज़ हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं या गर्ल्स हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं इनको मुश्किलात हैं कुत्ते यहाँ पे हैं वो किसी भी को काट सकते हैं और गंदगी से बीमारियाँ फैल सकती हैं वो यहाँ से इसको उठाएं और कहीं डंपिंग साइड में ले जाएं। तो मेरी नोट्स में भी ये अभी आया लेकिन मैंने इनको बोला कि आप स्कूल भी माशाल्लाह खुल गए हैं तो मैंने अपने स्टाफ को बोला कि पहले फर्स्ट रेफरेंस तुम्हारे में निकला करो तो पहले उस उसी कलेक्शन पॉइंट को साफ करा करो क्योंकि वहाँ बच्चों का मामला है तो हमें इस चीज़ का पूरा एहसास है कि वहाँ कुत्ते वगैरह भी होते हैं इस क्या नाम है इस गार्बेज में
तो इंशाल्लाह कल से इसकी शिकायत नहीं होगी। मैं आपको पता है हमारे जो रिसेंटली जो हमें डंपिंग साइट मिली है वहाँ बदकिस्मती से वहाँ गाड़ी कोई नहीं जाती है क्योंकि वहाँ आगे से नाला क्रॉस करना पड़ता है, वहाँ रोड की प्रॉब्लम है। ये भी एक बड़ी दिक्कत है हमें। हम इस वक्त जहाँ जो भी गार्बेज में वो हम जनरल बस स्टैंड में एक साइड में रखते हैं और जो ही थोड़ा बहुत वो पानी की लेवल कम हो जाएगी तो हम फिर वहाँ उसको शिफ्ट करेंगे। तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है लेकिन जो जहाँ पर जो भी कलेक्शन पॉइंट हमारे इंशाल्लाह हम उनको अगर 1 घंटा लेट होता है अब उनको मॉर्निंग में हम पहले के लिए मुल्कस मज पेट्रोल डीजल किस कीमतस मज प्रेत इजाफा सपदन सत घरेलू चीजन मज त इजाफा सपुद यथ दौरान लुकन मज सठा नाराजगी तो मायूसगी लबन तत आम लुकन हुंद वन हुकूमत लुकन हिंद मुश्किलात दूर करने बापत नाकाम सपुजम तो हुकूमतस पज लुकन हिंद मुश्किलात दूर करने बापत संजीदगी हुंद मुजाहिर कर। सब्जी हर कह चीज यह गो पलव तान सह कह चीज ये मज द्रजर यह बने वनकन जिंदगी यह बड़ जहनम वनकन जिंदगी बने बड़ सब्जी हुंद हाल क्यों क्या सब्जी तुम बासान सब्जी द्रजे अहन सोरे अद क्या सब्जी द्रोज हर कह चीज द्रोग यानी कि मार्केट हेकान इंसान कर कमिस नश बिक्री लुक वुचान तलसा वो तुलान कह चीज कुछ तुलान बिल्कुल जीरो 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 छापरे फोड़ो पे त्रो पन रेडो हो सोरे पत्थर ये पब्लिक डील कर मामूली सब्जी पर डे खर्च हर कुन गरस मज मगर हेकान लुक एफोर्ड कर नाजरीन वोत खबर खबरनामा दिव इजाजत खुदा हवाल।